Hey, good morning, student. Welcome you all. So, today I'm going to start the part second of the chapter number 5th, which is titled as The 100 Dresses 1, written by Althusser Esther. So, as you all know, in previous video, we saw that in this chapter, a girl is being talked about, and her name is Wenda Pentrosky. All right, and she was very poor girl, and she emigrated with her family. She emigrated from Poland to America with her family, and she was very poor. And her classmate, mostly and probably all the classmates were bullied her all the time, especially Peggy and Madeline. Madeline, जिसे हम क्या जानते हैं, मैडी के नाम से. All right, so Peggy and Maddie both are very good friends. All right, so let's see what happened next in this chapter. So Wenda Pentrosky, most of the children in room 13 did not have names like that. Means अब जैसे वेंडा पेंट्रोस्की का नेम था, जब वेंडा पेंट्रोस्की का जो क्लासरूम था रूम नंबर 13, उसमें ऐसा नाम किसी का भी नहीं था. They had names easy to say like Thomas, Smith or Allen. So they have a different kind of name like Thomas, Smith or Allen. It is these are easy to say, right? So there was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Pentrosky was. So अब उन्हीं की क्लास में एक अदर गर्ल था बाउंस, जिसपे हमें भी हंसी आ रही कि बाउंस कैसा नाम हो सकता है. ऑल राइट, सो बट द बाउंस इतना ज़्यादा फनी नहीं था जितना उन लोगों को क्या फनी लगता था, द वर्ड पेंट्रोस्की मीन्स द सरनेम ऑफ वेंडा, राइट. सो इट वॉज मच फनी if we compare to the bounce name. All right, so Wenda did not have any friends. She came to school alone and went home alone. Obvious है, Wenda के कोई भी friends नहीं थे, वो घर भी अकेली जाती थी और school भी अकेली आती थी. तो she always wore a faded. So here the word faded means faded क्या होता है, dim color, जिसका कलर क्या हो जाए, थोड़ा सा dim हो जाए, उसे हम faded बोलते हैं. क्लियर. सो एंड ब्लू ड्रेस. सो शी हैड अ फेडेड ब्लू ड्रेस that didn't hang right. So here the word didn't hang right means didn't fit properly, जो उसको properly fit नहीं होता. तो she had a faded blue dress that उसे जो properly fit नहीं होता था. Clear. So it was clean but it looked as though it had never been ironed properly. अब देखो क्या था कि उसको वो फिट तो नहीं आता था. इट्स काइंड ऑफ वेरी लूज ड्रेस, बट it wasn't dirty dress. It's clean dress but too much loose and never ironed properly. So she didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. See here यहाँ पे है mention कि उसके friends नहीं थे, but she used to talk so many girls, right? Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girl play hopscotch on the worn hard ground. So sometimes क्या होता था, वो बहुत सारी गर्ल से बात कर रही होती और जब वो वॉच कर रही थी हॉपस्कॉच. सो हियर द वर्ड मीन्स हॉपस्कॉच मीन्स अ गेम इन व्हिच चिल्ड्रन हॉप इनटू एंड ओवर स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड. आपने गेम देखा होगा जब आप बहुत छोटे होंगे, अभी भी अगर आप खेलते हो तो. सो व्हेन आई वाज अराउंड 14 और 15 ईयर्स ओल्ड ना, तब मैं ये गेम बहुत खेलती थी. जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं लंगड़ी टांग खेलना. अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग नाम से फेमस है. सो कुछ ऐसा सा गेम होता है, एक बॉक्स सा हम क्रिएट करते हैं जिस पे कुछ ऐसे बॉक्सेस, मतलब एक बड़ा बॉक्स है, उस पर ऐसे बॉक्सेस बनाते हैं, मार्क करते हैं 1 2 3 4 और कुछ मार्बल्स या स्टोन को थ्रो करते हैं और उससे ये गेम खेलते हैं. इसको हॉपस्कॉच कहते हैं. अब हॉपस्कॉच कहते हैं. अब यहाँ पे क्या था, जो वेंडा थी ना, वो हॉपस्कॉच जो गेम है जो गर्ल्स खेल रही होती थी उसको वॉच कर रही थी. दैट टाइम सम गर्ल्स उसके पास आती थी और उससे बात किया करती थी. ऑल राइट. सो वेंडा पैगी वुड से इन अ मोस्ट कोचियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन. So here the Miss Mason, here's the another character. Who is Miss Mason here? Miss Mason
इनकी क्लास टीचर थी, मतलब इनके टीचर थी जो इन स्कूल में जाते थे, वहाँ पे इनके टीचर का नाम था मिस मैसन। सो पैगी जैसे मिस मैसन से बात करती, जैसे हम अपने टीचर से कैसे बात करते हैं, इन अ वेरी पोलाइट मैनर और विद अ वेरी फॉर्मल वे, राइट। सो वैसे ही जो पैगी हैं, पैगी वन ऑफ द क्लासमेट ऑफ वेंडा, राइट। सो पैगी किससे बात कर रही थी, वेंडा से। So she would say, giving one of her friends a nudge. So here the word nudge means a gentle push. एक push देते हैं हम कुछ इसे like अपने arm से या elbow से. Tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closets? So यहाँ पे जो पैगी हैं वो वेंडा से बोल रही हैं कि just tell me, you already told me about your dresses. So tell me how many dresses you have. मुझे बता दो तुम्हारे पास कितनी dresses है. अब इन वेंडा के क्लासरूम में सब लोग जानते थे कि वो एक ही ड्रेस पहनती थी डेली, एंड दैट इज फेडेड ब्लू कलर ड्रेस, ऑलराइट। अब फिर भी उसका मोक करने के लिए फन वे में पैगी उससे पूछती है, जस्ट टेल मी हाउ मेनी ड्रेसेस दैट यू हैव इन योर क्लोजेस्ट। सो वेंडा सेड, हाँ 100, वेंडा वुड से 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. अब क्या था, सब लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, 100 ड्रेसेस। सो incredulously मीन्स क्या होता है, showing unwillingness to believe, मतलब जब किसी बात को अनबिलीवेबल चीज़, अगर अभी मैं कहूँ कि मैं रोज़ मून पर जाती हूँ तो आप लोग बिलीव करोगे, ये बहुत अनबिलीवेबल थिंग हो गई। तो सेम वे में, इन सिमिलर वे, जब वेंडा बोलती है कि आई हैव 100 ड्रेसेस इन माई क्लोजेस्ट, सो एवरीवन वाज देयर, सब क्या हो जाते हैं, सरप्राइज, दे वर ऑल सरप्राइज लिसन दिस थिंग कि 100 ड्रेसेस शी हैज। सो ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा। वेंडा कहती है हाँ सब एक साथ है, लाइंड अप है। Then her thin lips drew together silence. उसके जो thin lips हैं वो फिर वापस चुप हो जाती है, मतलब साइलेंट मोड पे चले जाती है। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Peggy बोलती है कि क्या वो सारे सिल्क के हैं, मतलब जो क्लॉथ मटेरियल है, जो स्टफ है, all were in silk material only. So then Venda said, yeah, all the silk, all colors, मतलब सब सिल्क की है, और I have all the colors, blue, red, green, white, yellow, pink, and many more. Alright, and velvet too. And she added one thing कि I have velvet one also, means I have lots of silk dresses, but one dress is velvet. Alright, so ये velvet to 100 dresses Venda would repeat stolidly, all lined up in my clothes. Stolidly क्या होता है, not showing any feeling, मतलब आप कोई फीलिंग शो नहीं कर रहे हो और कोई एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहे हो, तो कहती है येस आई हैव 100 ड्रेसेस, वो रिपीट करती है, ऑल लाइंड अप, सब लाइन से हैं। देन दे हैड लेट हर गो, एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, दे couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. So अब क्या होता है कि इसके बाद वो सब चले जाते हैं, ठीक है, और वेंडा थोड़ी ही दूर गई होती है, तो सडनली वो लोग क्या होता है, बर्स्टिंग इनटू श्रीक। सो श्रीक मीन्स क्या होता है, स्क्रीम, यानी चिल्लाना। श्रीक हियर मीन्स स्क्रीम, चिल्लाना। एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, सो द वर्ड मीन्स पील्स ऑफ लाफ्टर मीन्स लाउड लाफ्टर। वो सब जोर से हंसना स्टार्ट करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर हंसना स्टार्ट करते हैं। 100 dresses, obviously the only dress Venda had was the blue one she wore every day. अभी कह रहे हैं कि 100 dresses कैसे हो सकती है, वेंडा तो डेली क्या पहनती है, एक ही ड्रेस पहनती है, that is blue one only. So why did she say she had 100? तो what was the reason behind it कि उसने कहा कि उसके पास 100 dresses हैं? What a story behind it. All right. So how many shoes did you say you had? So Peggy एक बार फिर बोलती है कि अच्छा तुम बताओ मेरे पास शू कितने हैं, शूज कितने हैं, right? 60 pairs all lined up in my closet. And she again says कि I have 60 pairs of shoes and all lined up, सब लाइन से हैं, in my wardrobe and my closet. All right. So cries of exaggerated politeness greeted this all alike. अब क्या होता है, वो वैसे ही बोलती है बहुत पोलाइट में, तो एक्सीग्रेटेड पोलाइट मीन्स कि सामने वेरी एक्सट्रीमली मैनर दैट डजंट सीम सिंसियर और नेचुरल, कोई चीज़ सिंसियर नहीं लगती, पोलाइट वे में कहती है बट इट डजंट सीम वेरी सिंसियर और ट्रू। सो ऑल अलाइक, सब एक जैसे हैं। ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप,
सो बोलती है अच्छा, पैगी बोलती है कि सब एक जैसे हैं क्या? सो यहाँ पे मैंडा बोलती है नो नो, आई हैव सो मेनी ड्रेसेस, एवरी पेयर इज डिफरेंट, मतलब हर जो ड्रेस का पेयर है वो डिफरेंट है. आई हैव सो मेनी कलर्स एंड ऑल लाइन्ड अप. सो हियर पैगी, who had thought up this game and Maddie her inseparable friend. So here the word, so मैगी क्या होती है, पैगी ये एक तरह से गेम में ले लेती है. वो डेली मैडी वेंडा से क्वेश्चन पुट अप करती हैं. अब जो मैडी है, जो कौन है, बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड है किसकी, पैगी की. So always the last to leave. Finally Wenda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching. So अब क्या होता है, सारे बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, बट ओनली पैगी एंड मैडी वहाँ पे रहती हैं, लास्ट तक रहती है, क्योंकि उन्हें इतना मजाक, मतलब एक टॉप लेवल तक का मजाक वो वेंडा से करना चाहती है. एट दी एंड मतलब सब लोग चले जाते हैं, फिर भी वो मजाक करती है. अब वेंडा क्या होती है, वो चुपचाप बहुत डल आइस के साथ, माउथ क्लोज करके, कुछ नहीं बोल के, सो वो आगे चले जाते हैं. तो हियर द वर्ड हिचिंग मीन्स move into a different position with jerk, right? Her left shoulder every now and then in the funny way she had, मतलब बिल्कुल डल पेल सी कलर में चुपचाप वो निकल जाती है स्कूल से, right? She left the school while she had finishing the walk to school alone. अब Peggy was not really cruel. अब देखो ये फनी नहीं था कि वो स्कूल अकेले जाती है, because she doesn't have any true friend. लड़कियों से बात करती थी, she used to talk, means so many girls, but still she didn't have any close friend. Peggy was not really cruel. Peggy इतनी cruel नहीं थी जितना कि अभी हमें दिख रहा है. She protected small children from bullies. अब ये always क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी छोटे बच्चों को bullies होने से. अब what is the meaning of bully here? So those who use their strength or power to frighten weaker people. Alright, so मतलब bully करना, अगर suppose आप किसी से पावरफुल हो, राइट, और कोई आपसे वीकर आपको लगता है, वीकर है मेंटली और फिजिकली बोथ साइड से, राइट, सो आप उसको क्या करोगे, उसको तंग करने की कोशिश करोगे, टीज करने की कोशिश करोगे, उसी को बुली कहते हैं. एंड शी ट्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ an animal mistreated, if anybody had said to her, don't you think that is a cruel way to treat Wenda? अब देखो वो क्या करती थी, वो चिल्लाती थी जब कोई एनिमल से भी मिसट्रीट करता था. बट अगर कोई उससे कहता कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत क्रूअल वे में ट्रीट करती हो वेंडा के साथ, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज. क्रूअल बट डेट, मतलब ये बात करते ही जो पैगी है वो बहुत सरप्राइज थे. क्रूअल, सीरियसली आई एम क्रूअल विद हर. Why did the girl say she had 100 dresses? Then उस गर्ल ने ये क्यों कहा कि उसके पास 100 dresses है? अगर तुम मुझे cruel कह रहे हो तो anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. अब ये कह रहे हैं कि पहले तो उसने 100 dresses के बारे में क्यों कहा अगर उसके पास नहीं थी तो. इसके अलावा वो एक ordinary poor person भी थी और उसने लाई क्यों बोला. सेकेंड थिंग, उसका नाम बहुत फनी था. बट एनीवे उन लोगों ने, मीन्स मैडी और पैगी ने उसे कभी रुलाई, मतलब इतना लिमिट क्रॉस नहीं करी. ओके, दे डिडंट क्रॉस देयर लिमिट्स. एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बॉदरिंग हर. अब मैडी जो थी उसको बहुत बॉदर कर रहा था कि डेली जो पैगी है वो वेंडा से ये क्यों पूछती है कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मेनी शूज, हाउ मेनी दिस एंड दैट यू हैव. तो ये सब चीज़ें उसको बहुत बॉदर करी थी. मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ बिकॉज वेंडा तो पुअर थी, मैडी भी बहुत पुअर थी. शी यूजुअली वॉज समबडीज हैंड मी डाउन ड्रेस clothes. So what is the meaning of hand me down here? Old clothes handed down by someone else means पुराने कपड़े जब हम किसी को दे देते हैं अपने तो वो सेकंड हैंड हो जाते हैं. तो हैंड मी डाउन क्लोथ्स ही वो पहनती थी. कौन? मैडलेन, मीन्स मैडी. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगन्स हाइट और हैव अ फनी नेम. वो गॉड से थैंक यू बोल रही है कि थैंक गॉड कि मैं बॉगन्स हाइट पे नहीं रहती और मेरा इतना फनी नेम नहीं है. अदरवाइज वो सब किसका मजाक उड़ाते? मैडी का. Sometimes when Peggy was asking Wenda those questions in that mocking polite, mocking means here false meant to make fun of, मजाक करना, right?
Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing. अब देखो जब भी पैगी से कुछ क्वेश्चन पुट अप करती तो मैडी क्या होती, बहुत एम्बैरस फील करती थी, ठीक है. सो द वर्ड एम्बैरस मीन्स अशेम, बहुत अशेम फील करती थी और वो मार्बल्स को अपने हाथ पर रोल्स करती रहती थी. So herself, not that she felt sorry for Venda, exactly she would never have paid any attention to Venda. अब देखो वो वेंडा पे सॉरी फील नहीं करती, मतलब वो वेंडा को बहुत पुअर क्रिएचर नहीं समझ रही थी, बट वो एग्जैक्टली ऐसा करती थी कि उसमें वेंडा को भी उसने कभी ध्यान नहीं दिया था, बट उसके लिए उसको फिर भी बुरा लगता था. She would never, if Peggy hadn't invented the dresses game, but suppose Peggy and all the others started in on her next, she wasn't as poor as Venda, perhaps. अब क्या था, वो जो मैडी थी वो पैगी से कभी ये नहीं बोलती थी कि तुम ऐसा मजाक क्यों बनाते हो, बिकॉज कहीं वो सब मिलकर किसका मजाक न बनाने लग जाए, पैगी का. बिकॉज एक तो वो भी पुअर थी, इतनी पुअर नहीं थी जितनी वेंडा थी, बट स्टिल शी वॉज वेरी पुअर. Perhaps she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. But वो कह रही थी उसके पास इतने सेंसेस हैं कि एटलीस्ट वो ये नहीं कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, बिकॉज उसके पास नहीं है. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Venda Pentrosky. वो विश करती थी कि जो पैगी है वो रुक जाए वेंडा पेंट्रोस्की को टीज करना या उसे बुली करना. So till here our second part of this chapter is finished. So hope you all have must understood. So keep watching the videos, stay safe and stay home, and thank you.